So data communication refers to exchange of messages between sending and receiving devices through some communication medium. Means to say that you are using some communication medium. आपको कोई medium provide कर दिया जाता है जिसके through आप अपने messages को send भी करते हो और receive भी करते हो. These messages are actually the information which can be presented in many forms like text, numbers, images, audio and video. अब क्या होता है कि आपका जो मैसेज होता है दैट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, दैट कैन बी योर टेक्स्ट, मतलब एबीसी की फॉर्मेट में कोई भी, दैट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस आल्सो, कोई नंबर हो सकता है, न्यूमेरिकल डिजिट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, योर ऑडियो और योर वीडियो फाइल, मतलब whatsoever you want to send, आपके messages should be comprised of anything what you want according to your requirement. सो डाटा कम्युनिकेशन जनरली होता क्या है कि दो लोगों में आपने मैसेजेस एक्सचेंज करने हैं, मतलब मैसेज सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है बाय यूजिंग सम कम्युनिकेशन मीडियम. कम्युनिकेशन मीडियम की फर्स्ट डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी. कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है उसमें हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन मीडियम आपको एक चीज प्रोवाइड कर दी जाती है जिसके थ्रू आप लिंक करते हो, लिंकिंग की एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है. In the following section, we shall discuss the components involved in sending or receiving messages over a network. अब यहाँ पर हम इसके components discuss करेंगे कि communication system के basic components क्या होते हैं. A communication system is used to transfer data from one point to other point. अब आपने कभी भी messages भेजने होते हैं, you have to transfer the data from one point to another point. For example, if you want to communicate with me, you will send a simple email. You will simply email me a file or whatsoever you want. So this is the way to transfer the data. This is the way to do the communication between two persons. The process of data transmission has well-defined steps and they are executed in a particular sequence. Now, if you want to communicate with anyone of else, you will follow a particular sequence. मतलब अगर आपके पास 3 files हैं, you will send file number 1 first, file number 2 second, and file number 3 file number 3 at the end. So you will follow a particular sequence. For example, if you want to send your picture from your computer or cell phone to someone else, you need a communication system. अब वो कहते हैं आपने अगर किसी को अपनी कोई पिक्चर भेजनी है, कोई भी चीज आपने कोई फाइल भेजनी है अपने सिस्टम पे से, तो आपको क्या चाहिए होगा, एक कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होगा. कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कैन बी अ इंटरनेट. आपके पास इंटरनेट की अगर फैसिलिटी है, आपके पास सेल फोन या कंप्यूटर कुछ भी है, तो आप एक दूसरे को पिक्चर्स शेयर कर सकते हो. सो दिस इज द बेसिकली अ कम्युनिकेशन सिस्टम. The main components of a communication system are discussed below. Number 1 is sender. अब यहाँ पर इससे कंपोनेंट स्टार्ट हो गए हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी तो आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम को फॉलो कर सकोगे या एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जाकर आप कम्युनिकेट कर सकोगे. फर्स्ट वन इज सेंडर. सेंडर क्या होता है? सेंडर इज अ डिवाइस दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेंडर क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट करता है, चलाता है, मतलब शुरू करता है. ये सेंडर आपका बेसिकली, अगर आपको कोई बंदा कुछ भेज ही नहीं रहा हो तो आपका कम्युनिकेशन चैनल ब्लिंक कर ही नहीं सकता, आप कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते अनटिल और अनलेस कि दोनों पार्टीज जो है वो आपसे बात करना इन रिटर्न रिसीवर वाली साइड पे भी और सेंडिंग वाली साइड पे, दोनों पार्टीज अगर कम्युनिकेट करेंगी देन you follow a proper communication process. It sends messages consisting of text, numbers, pictures, etc. It is also called source or transmitter. Normally, computer is used as a sender in a communication system. अब वो कहते हैं कि आपने जो चीज भेजनी है, जो सेंड करनी है, that could be anything. That could be your text file, that could be your numerical file, that could be your picture, that could be your audio, video, anything whatsoever you want to send. It is also called source or transmitter. Another name of sender is source or transmitter. ये दो नाम है इस sender के. इसको आप source और transmitter के नाम से भी कह सकते हो और you can simply say sender. Normally computer is used as a sender in a communication system. Normally वो कहते हैं कि computer जो होता है वो आपका send as a send direct करता है जब भी आपने चीजों के साथ different लोगों के साथ या different systems के साथ communicate करना होता है. Next one is receiver. Receiver क्या होता है? Receiver is a device that receives the messages. It is also called sink. The receiver can be a computer, it can be a printer or an other device. The receiver must be capable of accepting a message. अब receiver क्या होगा? That is, receiver should be a device that should receive a message. अब आपके पास तो एक computer है, अगर आपके second party जिसके साथ आप communicate करना चाह रहे हो उसके पास computer ही नहीं है, then how he will receive the message? He can't receive the message until or unless he have a computer. तो ये क्या होगा कि जब तक दूसरी पार्टी के पास साथ भी सेम वही चीज कम्युनिकेशन मीडियम का एक लिंक क्रिएट नहीं किया जाएगा, देन यू कांट रिसीव और यू कांट सेंड, you can send but he can't receive the messages. Another name of receiver is sink, SINK.
और जो सेंडर था उसका अनदर नेम क्या था आपका ट्रांसमीटर और सोर्स, और रिसीवर का अदर नेम क्या है सिंक। ओके, रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, मतलब आपका कोई कंप्यूटर हो सकता है, आपका कोई प्रिंटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रिंट भेज रहे हो किसी भी चीज का, किसी भी फाइल का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो जो प्रिंटर होगा दैट कुड एक्ट एज अ रिसीवर। अगर वहां पर से प्रिंट आउट हो रहा है तो वो प्रिंटर जो होगा वो एज अ रिसीवर एक्ट करेगा। और इट कैन बी एनी अदर डिवाइस, आपका स्कैनर हो, कुछ भी हो सकता है जहां पर आपको चीजें मिल रही हैं, रिसीव हो रही हैं। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज, वही बात जो मैंने अभी कंप्यूटर की एग्जांपल आपको दी कि रिसीवर जो है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज, उसके बाद ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू वो मैसेज आपका रिसीव कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द मैसेज। मैसेज क्या होता है एक्चुअली? मैसेज इज द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज में क्या होता है, यू कैन ईदर सेंड योर डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो उसको आप अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन कुछ भी भेज सकते हो। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम। वही बात जो पहले भी बताई थी, दैट योर मैसेज कैन कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी आप अपने मैसेज के अंदर भेज सकते हो। In our data communication system, a message is sent in the form of packets. अब कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप जो अपना मैसेज भेजते हो वो पैकेट्स की फॉर्म में जा रहे होते हैं। हमें तो नजर नहीं आएंगे ये पैकेट्स, ये कोई हम देख नहीं सकते इन पैकेट्स को, मगर जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो स्मॉल स्मॉल चंक्स में पैकेट्स की फॉर्म में आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। ईच मैसेज हैज टू पार्ट्स। अब हर मैसेज जो आप भेजोगे उसके दो पार्ट्स होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर। ईच मैसेज हैज टू पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होगा, पेलोड, और दूसरा पार्ट क्या होगा, कंट्रोल इंफॉर्मेशन। दो तरह के पार्ट्स होते हैं, पेलोड एंड सेकंड वन इज कंट्रोल इंफॉर्मेशन। पेलोड क्या होता है? सबसे पहले पेलोड is the actual contents of the message, whereas the control information contains information about the sender and the receiver. अब आपका पेलोड क्या है? पेलोड इज द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ मैसेज। आपका एक्चुअली जो चीज आपने देनी है, एक्चुअली जो चीज आप मैसेज में जो आपका कंटेंट है वो आपका क्या है, पेलोड है। और आपकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन है अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर। जो आप सेंड कर रहे हो, जो चीज आप भेज रहे हो और जो चीज आपकी रिसीव हो रही है, दैट इज योर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जो आप एक्चुअली मैसेज का कंटेंट भेज रहे हो वो आपका क्या है, वो आपका पेलोड है। और जो इंफॉर्मेशन उस मैसेज के अंदर है जो कि आप सेंडर को या रिसीवर को भेजोगे, दैट इज कॉल्ड योर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ अ मैसेज। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम अपने मैसेज का हेडर भी कह सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक राइटिंग अ लेटर वेयर वी राइट अ लेटर अलोंग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट इट सेंडर एंड रिसीवर। इसको हम हेडर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब भी हम फॉर एग्जांपल हमने किसी को लेटर भेजना है तो हम उसके हेडर में अपना नाम लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, दो चीजें हम प्रोवाइड करेंगे तो हम अपना लेटर किसी को भेज सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल योर लेटर इज द पेलोड। इस एग्जाम्पल में आपकी जो लेटर है, मतलब जो मेन आपका लेटर होगा, दैट इज योर पेलोड। इट रिक्वायर्स द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिस्पैच एंड गेट अ रिप्लाई। अब उसको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब उसको रिसीविंग साइड की इंफॉर्मेशन चाहिए, रिसीविंग साइड का एड्रेस चाहिए, जिसके थ्रू आपका जो लेटर होगा वो किसी और पे जहां पर आप भेजना चाहते हो वहां पर चला जाएगा एंड यू विल गेट अ रिप्लाई इन रिटर्न ऑफ योर लेटर। दैट वुड बी योर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। Let's see an example of message over here. Example: suppose you want to distribute your books of 8th class to different people, and it is possible that the recipient of the book may write you a letter of thanks. That if they have just given a very simple example over here, that you want to distribute all your old books of class 8 की books जितनी भी हैं वो आपने different लोगों में distribute करनी है। तो क्या होगा, it is possible जो आपको जिस बंदे को आप books दे रहे हो, जो आपका recipient है book का, might be he needs to write a letter of thanks to you, मतलब वो thank you करना चाहता हो आपको। You put a label on each book containing the destination address. अब आप क्या करोगे, हर बुक के ऊपर अपना एक लेबल लगा दोगे। लेबल में आप क्या ऐड करोगे, डेस्टिनेशन का एड्रेस बता दोगे विदाउट एनी फर्दर इंस्ट्रक्शंस एज शोन इन द फिगर। और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, बस अपना एड्रेस आप उस पर लगा दोगे। इन दिस एग्जाम्पल द लेबल इज अ हेडर। अब जो लेबल है आपका वो क्या है, आपका हेडर है। जो लेबल आप अपने हर बुक के ऊपर लगाओगे वो आपका क्या है, हेडर है। और हेडर के अंदर आप क्या दे रहे हो, डेस्टिनेशन का एड्रेस दे रहे हो, जहां पर आपकी आपका जो बुक है आपकी जहां पर जानी है वहां का आप एड्रेस दे रहे हो। तो ये क्या होगी, आपकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी। एंड द बुक इटसेल्फ इज पेलोड आल्सो कॉल्ड मैसेज। और जो बुक आप भेजना चाहते हो वो क्या है, आपका पेलोड है, दैट इज आल्सो नोन एज अ मैसेज।
देयर इज अ वेरी सिंपल डायग्राम शोन ओवर हियर. एक साइड पे सेंडर है और दूसरी साइड पे रिसीवर है. सेंडर ने मैसेज भेज दिया है, मैसेज आपका फ्लोट हो रहा है. You can see over here your message is floating over here, and at the end receiver is receiving your message. Okay, now next important component of data communication is the protocol. अब प्रोटोकॉल क्या होता है? ये वो वाला प्रोटोकॉल नहीं है जो हम जनरल इन टर्म्स नॉर्मल डेली लाइफ में बात करते हैं. ये डाटा कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है. अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. अब दो पार्टीज के दरमियान एक फॉर्मल एग्रीमेंट है, मुआहदा, एग्रीमेंट. A network protocol is a formal agreement between two computers to send and receive information. अब कंप्यूटर की या नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो क्या है, दो कंप्यूटर्स जो कि आपको मैसेज भेज भी रहे हैं और मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं, इनके दरमियान एक फॉर्मल एग्रीमेंट है आपकी इंफॉर्मेशन का, कि आपने जो इंफॉर्मेशन भेजनी है वो किस साइट पे भेजनी है, सेंडिंग साइट पे क्या होगी, रिसीविंग साइट पे क्या होगी. उनके दरमियान एक एग्रीमेंट है कि आपने मैसेजेस मेरे रिसीव करने हैं तो किस तरह से करने हैं, क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी. वेरी स्पेसिफिकली अब यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेशन वो दे रहे हैं. वेरी स्पेसिफिकली अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर. अब वो कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स. रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, बता दिया जाता है कि आपने सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो किस बेस पर होगी. डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स आर डिफाइंड, दैट इज नोन एज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल. Some protocols will be discussed in the section 3.4.1. Next important communication channel is data communication component is transmission medium. आपकी transmission का medium मतलब data आपका किस तरह से transmit होगा. Medium is the physical path that connects a sender and a receiver. Medium क्या होता है, एक physical path होता है जिसके थ्रू आप अपनी communication आप अपने connect कर सकते हो sender के साथ और receiver के साथ. इन दो लोगों के साथ sender और receiver, इन दोनों ने जो communicate करना होता है, तो जो physical path जिसके थ्रू आपका message जाना होता है उसको हम कहते हैं that is known as a medium. It is used to transmit data. आप अपना data transmit करने के लिए medium को use करते हो. The medium can be a copper wire, a fiber optic cable, microwave, etc. It is also called a communication channel. So your communication transmission medium can be of any copper wire. If, for example, if you are using a process of networking over here, and if you are using networking, that might be your internet connection wire is of copper wire. कॉपर वायर के साथ आपकी कम्युनिकेशन हुई हो तो जो मीडियम होगा दैट वुड बी अ कॉपर वायर. और योर इंटरनेट कनेक्शन इज अ फाइबर ऑप्टिक. फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन आपने लिया हुआ है. और इट कैन बी अ माइक्रोवेव, सिंपली वायरलेसली आप अपने कंप्यूटर या सेल फोन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो. तो दैट ऑल विल बी that all are the communication channels. It is also called a communication channel. Basically communication channel था क्या, आपने कम्युनिकेट करना होता है, दो डिवाइसेस ने सेंडिंग और रिसीविंग दोनों ने कम्युनिकेट करना होता है, तो दरमियान में एक पाथ क्रिएट कर दिया जाता है. दैट इज योर कम्युनिकेशन चैनल और दैट इज योर मीडियम. Figure 3.13 shows that a message is transmitted from a sender to a receiver through some transmission medium. अब यहाँ पर उसने एक जनरल सी ब्लॉक डायग्राम बनाकर आपको दिखा दी है कि वन साइड पे सेंडर है, सेंडर के पास भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा. प्रोटोकॉल्स क्या थे, these are the rules and procedures to do the communication between a sender and a receiver. So there are protocols on the sender side also and on the receiving side also. There are both of them are having some protocols, and there is a medium between sender and receiver, and you have just floated a message from sender to receiver. इस तरह से आपकी communication हो रही है. These all are the basic components of the communication system. मतलब ये आपका sender जो था ये भी communication system है, receiver भी system है, message भी आपका system है, medium भी आपका system है और protocols भी आपका communication system का component है. A device may use multiple channels at the same time. अब जो एक device होगी वो multiple channels को utilize करेगी, multiple channels को use करेगी एक ही time पे. For example, if a cell phone is connected with the internet, अब आपका सेल फोन जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है. इट यूजेस अ डाटा चैनल 3G 4G LTE
for using the internet service and a voice channel for calling purposes. So your cell phone is using multiple channels over here. For example, if you want to avail internet service, अगर आप internet service अपने cell phone में avail करना चाहते हो, then you might be are using 3G or you might be using 4G or LTE, कुछ भी आप use कर सकते हो. That is the data channel. And if you are using your cell phone for the purpose of voice messages or voice calling, then आप जो voice channel होगा उसका उसके through आप communication करोगे calling purpose के लिए. Okay, so these were all the components of the communication channel. जो आज हमने पढ़ा, these all are the basic components of data communication. Data आपने float करना है, उसके लिए sender होना चाहिए, receiver होना चाहिए, message होना चाहिए आपका. उसके अलावा your protocol, rules and regulations, your transmission medium, मतलब जिसके थ्रू आपने अपने चीजें ट्रांसफर करनी है, मीडियम कोई आपको प्रोवाइड होना चाहिए, करना चाहिए. Okay. So this was our today's topic. अब इसके अंदर से आपने करना क्या है? You have to make a short questions of all these components. मतलब यहाँ पर basically sender, what is a sender, what is a receiver, what is a message, what is a protocol, what is a transmission medium. ये 5 चीजें आपकी, इन 5 के आपने short questions बनाने. You may take the screenshot of these all if you are not having the book. और इसके अलावा बुक आपकी ऑनलाइन पड़ी हुई भी है, आप उसको अपने डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ की फॉर्मेट में इंटरनेट पर पड़ी हुई है ये बुक, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो. इट्स योर 3rd चैप्टर, दैट इज ऑफ नेटवर्क्स. अब इन 5 के आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने एज अ होम टास्क, और ये यू हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर रजिस्टर में लिखने हैं ये आपने. whensoever school will open, I will check all these homeworks. सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन आ जाएगी, दैट इज इन द फर्स्ट लाइन. यू मे टेक द स्क्रीनशॉट. A communication system is used to transfer data from one point to another point. उसके बाद आपके components आ गए. Mainly there are 5 components. Sender, what is a sender? A sender is a device that initiates the communication process. It can be a text, number, pictures, etc. फिर आपके receiver की आ गई. After that your message, after that your protocol, and after that your transmission medium. Now students, you can ask any questions. Any questions about what we have studied today?